नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चल रहा है हमारा चैप्टर। अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देख लिया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज नॉट इनफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन इट, राइट। सो उसका एक्सप्लेनेशन देखना है हमको। लाइट या बोल आइंस्टाइन आइंस्टाइन थ्योरी है ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके हेल्प से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। तो फोटोन थ्योरी में क्या लिखा हुआ सी? फोटोन थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, whatever you say, a quantum theory. What is written there? That wave में energy transfer is a continuous process, right? वेव से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, that energy transfer is a continuous process, right? ऐसा नहीं होता है कि रुक रुक के एनर्जी आ रही हो। हेलो, as per electromagnetic wave theory, energy transfer is a continuous process, right? But photon theory में क्या लिखा हुआ? Energy transfer continuously. Instead, energy is transferred in discrete units, in packets or in bundles. आपको ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही, बट कंटिन्यूसली नहीं आती, वो पैकेट्स में आती है, राइट। वन सच bundle of energy or one bundle of energy or one packet of energy is known as one photon, right? So energy transfer is not continuous, instead it takes place in discrete units. One unit, discrete unit known as photon, right? So yeah, quantum. So one such bundle of energy is known as a photon or quantum packet of or bundle of energy, right? आरएसएन में हाँ सर, एक बंडल एनर्जी जो है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय h nu, where h is Planck's constant, its value is 6.63 into 10 raised to minus 34 SI unit, that is joule second, and nu is frequency of radiation. जो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा उसके फोटोन की एनर्जी उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर आपके फोटोन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो आपके एक फोटोन की एनर्जी कम होगी, एक पैकेट में एनर्जी कम आएगी, राइट। अगर आपका फ्रीक्वेंसी, आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देन एनर्जी ऑफ वन फोटोन वुड बी मोर, राइट। यस सर। देन नेक्स्ट क्या लिखा है? आइंस्टाइन एक्सप्लेन कि व्हेन दिस फोटोन, ये जो पैकेट है, राइट, ये जो पैकेट है एनर्जी का, ये जब सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। So when photon falls on the surface, when photon falls on the surface, an electron absorbs its energy. When photon falls on the metal surface,
metal surface absorbs electron, absorbs its energy, राइट। तो जैसे ये एक फोटोन आ रहा है, ये एनर्जी लेके आ रहा है, कितनी, h न्यू। ये जब इस सरफेस पर गिरेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब दैट फोटोन, ये पूरा फोटोन ही एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। Now, if this energy of photon is more than the work function, if energy of a photon absorbed, that is h nu, is more than energy needed by electron for emission, that is work function, then electron is emitted. यही बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन मिले, राइट। सो इफ एनर्जी ऑफ a photon absorbed is more than the energy needed by electron for its emission, then we say then electron is emitted, electron emission takes place. आ रहा है समझ में? हाँ सर। एंड अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, एनर्जी फोटोन की कितनी थी? एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu and energy needed for its emission is w naught. So maximum kinetic energy जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको नजर आएगी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और emitted electrons is given by maximum kinetic energy of emitted electron is given by h nu minus. This is Einstein's photoelectric work equation. Einstein's photoelectric work equation, right? So maximum kinetic energy of emitted electrons is h nu minus work function. आ रहा है समझ में? हाँ सर। So हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नहीं। Now, as per this theory, energy carried by a photon is function of frequency and not of intensity. Energy transferred by a wave, is a function of intensity, which in turn is a function of amplitude. But in photon theory, energy transferred by a photon is not a function of intensity, but is a function of frequency. As you can see, E is equal to h nu, right? So intensity बढ़ाने से आपके एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, राइट? फिर क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से number of photons transferred per unit area per unit time will increase. I'll repeat. इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगा on increasing intensity. सर, इससे emitted electrons भी बढ़ेंगे ना? सॉरी,
इससे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे ना। हाँ यही होने वाला है ना, वही तो एक्सप्लेनेशन में फटाफट देखेंगे अभी। मेन ये आइंस्टाइन फोटो सॉरी आइंस्टाइन थ्योरी है, समझ लो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसके बेसिस पे हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी आपको समझा रहा हूँ फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी का फंक्शन क्या है और इंटेंसिटी का फंक्शन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ने वाली, एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, बट इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसफर्ड और कैरीड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, टाइम विल इंक्रीज। ऐसा करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स कैरीड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस। कैसा करने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से। एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। ऑल राइट, आ रही बात में? हाँ सर। हेलो सर एक फोटॉन तो क्यों? ये थ्योरी है आइंस्टाइन की। सॉरी, एक फोटॉन क्यों? मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, रुक रुक के सर आ रही है। क्या बोल रहा है? एक फोटॉन एक फोटॉन क्यों? हाँ सिर्फ एक ही फोटॉन की फोटॉन बेटा, की एनर्जी क्यों बढ़ती है? ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ना। हाँ 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 हाँ। देखो पहली चीज तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स हैं। वापस से याद दिला दूं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आइंस्टाइन ने भी जवाब नहीं दिया। उसने बताया ऐसा होता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऑब्जर्वेशन से। सी आइंस्टाइन सजेस्टेड कि इट हैपेंस लाइक दिस, ये रीजन है, इसका रीजन नहीं है। हाँ ठीक वापस है। बोलूं, नहीं समझा। यू कैन से दीज आर पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन ने पॉइंट्स प्रपोज किए, लोगों ने बोला ठीक है आप इसमें जस्टिफाई तो करो, ये नहीं बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है, गॉड हैज मेड इट लाइक दैट। भाई पैकेट्स है, मेरे को बताओ, आप मार्केट से चाय पत्ती परचेज करोगे, राइट? ठीक है, आप बोलोगे एक बंडल में एक पैकेट में कितने ग्राम है, तो 50 ग्राम है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अब वो आ रहे हैं पैकेट 50 ग्राम में, राइट? अगर आप शैम्पू खरीदने जाओगे, वो आपको 10 ग्राम का भी पाउच मिलेगा, आपको 5 ग्राम का भी पाउच मिल जाएगा, ये 50 ग्राम का आ रहा है। समथिंग लाइक दैट। मतलब शायद मैं अच्छा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसे ही है। मतलब है एक बंडल में जो एनर्जी है, एक पैकेट में जो एनर्जी है, दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? हाँ सर। एंड फिर मतलब बहुत सारे बंडल्स पर सेकेंड आने लगेंगे, तो हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ज्यादा है। भाई इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा है, लेकिन पहले क्या लिखा था, वेव थ्योरी में क्या लिखा था कि एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा है बिकॉज एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा क्यों हो रही है इंटेंसिटी की वजह से, बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स कैरिड बढ़ गए, मगर एक फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होगी। ओके हाँ सर। now let's see the explanation of all the observations on the basis of this theory। इस थ्योरी के बेसिस पे, इस प्रपोजिशन के बेसिस पे हमने आइंस्टाइन ने सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए। लाइक लेट्स गो बैक टू आवर ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या था ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा था, अगर आपको याद हो ऐसा,
ऐसा होता था, right? And this frequency was known as threshold frequency. Here we have photo current and here we have frequency of radiation. So frequency of radiation increase करने से why photo current increases? Yeah, threshold frequency not sorry गलत बोले, frequency increase करने से threshold पे जाके ही photo current क्यों आता है, ठीक है? So let me explain on the basis of this photon theory. Suppose this is a metal surface and these are some of its free electrons. Yeah, it's electrons, right? Now आपने लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिया, लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, लेट अस से लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, ठीक है? तो लेट अस से उसके एक फोटोन की एनर्जी लेट अस से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट एन एग्जांपल, और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक एग्जांपल है, या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन. This is just this number I am saying for explanation. So let us assume आपने लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दिया, तो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होगा तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है एक फोटोन की एनर्जी, फॉर्मूला भी लिखा हुआ हमारे पास h इंटू न्यू, तो न्यू कम तो एक फोटोन की एनर्जी कम, राइट? तो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, एक फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आ रहा है समझ में? हाँ सर. तो होता क्या है, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया, मान लो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाके फिर वापस रिटर्न नीचे आ जाता. इफ यू रिमेम्बर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पे एनर्जी लेवल्स होते थे. अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसके एस्केप करने जितनी एनर्जी आप नहीं दे रहे, उसको बाहर निकलने के लिए 6 चाहिए, तो आप उसको 6 नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, 3 लेगा, तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया, 3 एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुंच गया, और ये इमीडिएटली विद इन मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, इसके पहले कि दूसरा फोटोन पहुंचे वो एनर्जी वापस रेडिएट करके फिर नीचे आ जाएगा जब. तो इस हिसाब से आप सोचोगे सर 3 के 2 लेके वो ऊपर चला जाए तो वो भी नहीं होने वाला, तो कैसे भी करके वो बाहर नहीं जाएगा. ट्रांजिशन टाइम सॉरी मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक ऑर्बिट में नहीं रुकेगा, हायर ऑर्बिट में अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया तो तुरंत रेडिएट बैक करके वापस से रेडिएट करके एनर्जी नीचे आ जाएगा. हेलो, हाँ सर. हाँ, आप सोचो कि आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए तो भी बाहर नहीं आएगा, और बढ़ा दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे तो भी बाहर नहीं आएगा. जब जाके आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो उसको कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना उसको बाहर आने के लिए जरूरत है, और वो भी वन शॉट, एक बार में ही. इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपको 100 रुपीज का बर्गर खाना है, आपके पास 100 रुपीज नहीं है, मैंने आपको 10 रुपए दिए तो आप बड़ा पाव खा के आ जाओगे, नहीं, आप वेट नहीं करोगे कि 10 के 10 मिल जाएंगे तब जाके एक बर्गर खाएंगे, हाँ? और आप तो वेट कर भी लोगे, आप समझदार हो, बट इलेक्ट्रॉन इतना समझदार नहीं है, नहीं. व्हाट इट विल डू इज if you give it some an energy which is lesser than work function, तो एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो हायर ऑर्बिट जाएगा, इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, और जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वो रिटर्न कर देगा. ओके, समझा? तो emission does not take place, but if you go on increasing the frequency, energy carried by one photon goes on increasing. There will be a stage when energy carried by one photon is equal to the work function, तुरंत emission start हो जाएगा, वहां पे emission start हो जाएगा. आ रहा है समझ में? ना, अगर इक्वेशन से मैं चलूं, सपोज से न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
इंसिडेंट रेडिएशंस बी न्यू, ये फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एक की एनर्जी कितनी हो गई, h न्यू। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी हो गई, h न्यू। उसको निकलने के लिए कितना चाहिए था, w। तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बचनी चाहिए, कितनी बचनी चाहिए, विच इज एक्चुअली आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक वर्क इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी लेस देन जीरो। एमिशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कम से कम जीरो हो या तो जीरो से ज्यादा ही होना चाहिए ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं होती, राइट। मतलब एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। एज अ लिमिटिंग केस, अगर मैं बोलूं लिमिट क्या है, लिमिटिंग केस की बात करूं तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। As a limiting case, h nu minus w naught should be equal to zero. मतलब h nu should be equal to, मतलब nu should be w naught by h। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब जो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है वही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। Therefore, for emission limiting case अगर मैं बोलूं, emission nu frequency of incident radiation should be at least W naught by H। बस वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। क्या दिमाग में लॉजिक? भाई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क इक्वेशन से मैं अप्रोच करूं तो उसके हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड बी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो भाई ये तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो एट द मैक्स। अच्छी बात है। लिमिटिंग केस क्या है, मिनिमम इतना होना चाहिए, एच न्यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। तो न्यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाय एच, राइट। यस सर। ये हो गया। तो फॉर एमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी एटलीस्ट डब्ल्यू नॉट बाय एच। इसी को नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एस, राइट। और अगर इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखूं तो मैं लिखूंगा c by lambda naught is equal to w naught by h। तो lambda naught is equal to hc by वर्क फंक्शन whatever। तो वही रीअरेंज कर रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया पहला ऑब्जर्वेशन। तो इस थ्योरी के हिसाब से जस्टिफाइड है कि नहीं है? प्रीवियस थ्योरी के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है जस्टिफाइड? देयर दे हैव रिटन, सॉरी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कितनी भी फ्रीक्वेंसी कम हो, एनर्जी ट्रांसफर तो कंटिन्यूस है, तो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसा आना ही चाहिए कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, राइट। हाँ सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था? रिकॉल द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा था वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक कंडीशन में? व्हाट वाज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन? देखो, कोई देखेगा बताएगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ओ, कहाँ पहुंच गया? मतलब इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट था सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक, यहाँ पे लिखा था हमने इंटेंसिटी
फ्रीक्वेंसी कीपिंग स्लाइटली ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, और यहाँ लिखा था फोटो करंट. ग्राफ was straight line. Photo current is directly proportional to intensity. This is what we have discussed. Photo current is directly proportional to intensity. Yeah. हेलो, क्या आपको याद है? Yes, sir. तो ऐसा क्यों हो गया? हाँ, वहां पे लिखा हुआ इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, on increasing intensity, number of photons carried per unit area per unit time increases. Per unit time increases. Right? Yeah, on increasing intensity, number of photons carried per unit area per unit time increases. अच्छी बात. उससे क्या हुआ? Therefore, number of photons absorbed, hence number of emitted electrons increases with increase in intensity. Yeah? Number of photons absorbed increases with increase. So number of photons absorbed, hence number of emitted electrons increases with increase in intensity. अगर आप intensity बढ़ाओगे तो number of photons absorbed by the electrons or number of electrons emitted will also increase, right? Hence current increases. मैं पहले 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे, 10 आप पुल कर रहे थे, फिर आपने 20 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट करा दिया, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हैं, फिर आपने ट्रिपल कर दिया, बढ़ते जाएंगे, राइट? Hence photo current increases. Photo current increases. एंड मजे की बात है, नॉट ओनली फोटो करंट इंक्रीजेस, एक्चुअली डबल किया तो डबल भी हो जाता है. नॉट ओनली फोटो करंट इंक्रीजेस विद इट, बट डबल किया तो डबल, ट्रिपल किया तो ट्रिपल, 5 टाइम्स किया तो 5 टाइम्स, ऐसा बढ़ता है. नॉट ओनली, ऑल्सो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैरीड per unit area per unit time is directly proportional to intensity. Hence current is कन्विंसिंग लग रहा है, शायद मेरे स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे ना हो, बट आपको लॉजिक समझ में आया. Hence current is directly proportional to हाँ सर.